So the first topic which we are starting with in this chapter is thrust. We call it thrust. 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 What is thrust? Thrust is the total force acting perpendicular on a surface. That is, force acting normally or perpendicular to any surface is known as thrust. Force acting normally. When we use the word normally, we mean perpendicularly. Perpendicularly. Okay. Normal means making an angle of 90 degree with any surface or line. That is normal. Normal means perpendicular. Always remember. Normal means perpendicular. Okay. So force acting normally or perpendicularly on any surface is called thrust. So that means this thrust is not a new thing. It is a force only. It is a type of force. It is a special type of force. Okay. Force which is perpendicular to a surface is known as thrust, or thrust is a perpendicular force or a normal force. So suppose this is a surface. Let me draw a three-dimensional surface for you. Suppose this is top of a table. Okay. Okay, so this is, let's say this is top of a table, and on this table, suppose you are exerting a normal force, a perpendicular force like this at different places. It can be one force, it can be multiple force, but all these forces are perpendicular to the surface of this table. Okay, then these forces are known as thrust. If at all any of the forces acting like this, which is not making 90 degree with the surface of the table, then that is not thrust. Okay, that is not thrust. Okay, so we know now thrust is a special force which acts perpendicular to any surface. What is the SI unit of force? We have studied in the previous chapter, laws of motion. The SI unit of force is Newton, capital N. So can you tell me what is the SI unit of thrust? Yes, the SI unit of thrust is also Newton, because thrust is nothing but a force only. Thrust is not a new quantity, it is force only, but only it's a special force because its direction is perpendicular to the surface on which it is acting. So quantitatively, thrust is also a force, and thrust also has SI unit of Newton. It is not a new thing. Okay, don't worry about that. Now we come to pressure, and pressure is very, you can say, widely and frequently used word in our day to day life. तो हम लोग बहुत ये काफ़ी यूज़ करते हैं ये वर्ड। जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्कलोड, प्रेशर, ये हम लोग जनरली एक, यू कैन से, इमोशनल या साइकोलॉजिकल टर्म के हिसाब से प्रेशर यूज कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर, ये भी तुमने सुना होगा, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। किसी एक जॉब में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैं बोलूँगा हाँ, एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजरता हूँ, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सिर पे कि मुझे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मुझे बहुत मेंटल प्रेशर लेना पड़ता है टू मेक श्योर दैट एक एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें ठीक से पढ़ा पाऊँ। तो देखो, मैंने वर्ड यूज़ किया मेंटल प्रेशर, प्रेशर, वर्क प्रेशर, ये सब हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। बट देन व्हाट implications are we meaning with this word when we use them? Does it have any physical significance? That's the main thing. Physical significance of pressure. We have to understand the physical significance. Physical significance मतलब
फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स, इन द क्वांटिटीज और द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ये प्रेशर का क्या मीनिंग होता है, उससे उससे रिलेटेड प्रेशर का क्या मीनिंग होता है, ये हमें जानना है। ठीक है। सो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ भी ये लोग ने एक एग्जाम्पल दिया है। आई एम गोइंग टू टेक माई ओन एग्जाम्पल। लेट्स से okay, I'm sure that every one of you has visited a beach. सब लोग समुंदर किनारे बीच पे तो डेफिनेटली गए हो। सो बीच पे सैंड होती है, और सैंड पे चलते हुए तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हुआ रहेगा। ठीक है। वॉकिंग ऑन सैंड इज डिफिकल्ट। वॉकिंग ऑन सैंड इज डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों डिफिकल्ट होता है सैंड में वॉक करना? बिकॉज द फीट they go into the sand, or you can say the feet drives in the sand। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में मुझे पता है कि पैर धस जाते हैं। ठीक है। और फीट गेट्स धस जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ट मोमेंट में मेरे को वो फ्रेज अभी निकालना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, वेट। You know, English is a funny language, and while I was searching for धस जाना in हिंदी, तुम्हें पता ही होगा हिंदी में ये टर्म होता है, धस जाता है, पैर धस जाते हैं रेत के अंदर। ठीक है। सो इंग्लिश में बोलते हैं फीट सिंक्स इन। सिंक डूबना और धसना इंग्लिश में एक ही बात है। ठीक है। फीट्स फीट्स नहीं होता, फीट ही होता है। फुट का प्लूरल फीट होता है। या सो फीट सिंक्स इन द सैंड। ठीक है। तो देखो मैं क्या तुम्हें समझाना चाह रहा। बीच पे जो सैंड होती है उसमें वॉकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि फीट जो पैर होते हैं वो सैंड के अंदर सिंक हो जाते हैं, धस जाते हैं अंदर। तुमने देखा होगा, फिर उसको निकालो फिर आगे जाओ, तो यू कैनॉट वॉक प्रॉपरली। अच्छा, वो सैंड अगर वेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो ड्राई सैंड होती है उसमें चलना बहुत डिफिकल्ट है। What about, have you ever noticed lying down? Have you ever noticed lying down in sand? Is it difficult? No, that's fairly easy. Because why is it easy? Because a body does not sink in sand. अगर तुम बीच पे सैंड पे सोए हो तो तुम्हारा बॉडी ऐसा धंस जाता है कि अंदर सिंक हो जाता है सैंड में? बिल्कुल नहीं। बॉडी सिंक नहीं होता। हाँ, चलते टाइम फीट सिंक होते हैं, लेकिन लाइंग डाउन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली तुम लाई डाउन कर सकते हो, इजीली लाई डाउन पोजिशन से उठ भी सकते हो। बॉडी सिंक नहीं होता है सैंड में। तो ऐसा अलग अलग क्यों है? बॉडी तो तुम्हारी एक ही है। चलोगे तो भी तुम्हारे बॉडी का जो वेट है वो एक है, लेकिन और लेटोगे तभी भी बॉडी का वेट उतना ही है। बॉडी डज नॉट सिंक इन द सैंड, बट वाइल वॉकिंग फीट सिंक्स इन द सैंड। ठीक है। ये एक चीज मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। नंबर वन एग्जाम्पल बीच का हो गया। ठीक है। नंबर टू एग्जाम्पल, नंबर टू, नेल। पता है नेल? नेल मतलब नाखून नहीं, नॉट योर फिंगर नेल्स। नेल मतलब जो तुम विच यू पुट इन द वॉल, विच वी पुट इन वॉल। ठीक है। कोई भी चीज को हैंग करने के लिए नेल डालते हैं ना हम लोग। ठीक है। नेल का तुमने शेप देखा है? सो इट इज पॉइंटेड एट वन एंड, and it is blunt or it has a larger surface area on the other hand end। तो ये वाला जो एंड है वो है पॉइंटेड, और ये है ब्लंट। ब्लंट बोलेंगे तो मतलब नॉट पॉइंटेड, फ्लैट। ब्लंट या फिर फ्लैट। फ्लैट और पॉइंटेड तो डेफिनेटली अलग ही है, राइट?
ये जो नेल है, इसको तुम जब वॉल में डालते हो तो पॉइंटेड एंड वॉल में डालते हो या ब्लंट एंड डालते हो? ऑफ कोर्स पॉइंटेड एंड डालोगे। ब्लंट एंड डालोगे तो वो जाएगा अंदर नेल में, नेल वॉल पे। बिल्कुल नहीं, वॉल टूट जाएगी, लेकिन वो वॉल के अंदर होल नहीं बना पाएगा वो। वॉल पूरी टूटने लगेगी अगर तुम ज्यादा उसको, अगर तुम हैमर या पॉइंटेड एंड को करोगे और इसको वॉल के पास रखोगे सपोज, ठीक है, तो वॉल में बड़ा बड़ा ऐसा डैमेज हो जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर पॉइंटेड एंड को वॉल में डाला तो वो आराम से अंदर चला जाता है। अंदर जाके फिर वो वहां पे फिक्स हो जाता है और तुम इसके ऊपर कोई भी चीज हैंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज देखना, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि अब हम काफी इंटरेस्टिंग बात पे आ चुके हैं। तो एक चीज जरा देखो कि सैंड पे वॉकिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि पैर अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज मैं हिंट देना चाहूंगा, एरिया ऑफ फीट इज लेस, इसलिए वो जल्दी अंदर चले जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। अच्छा, बॉडी सिंक नहीं होती, क्योंकि कंपेरेटिवली एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज मोर देन द फीट। बॉडी का एरिया फीट से ज्यादा है, इसलिए बॉडी सिंक नहीं करती। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये जो पॉइंटेड है एंड है वो आराम से अंदर चला जाता है। क्यों? बिकॉज इसका जो एरिया कम है, और ब्लंट या फ्लैट एंड का जो एरिया इज मोर, तो ये अंदर दीवार में नहीं घुसता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, चलो कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग? हाँ, ये वाला अच्छा एग्जाम्पल है, नाइफ। मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो तुम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तुम्हें आराम से ये प्रेशर और थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर हमें ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, फिर जो भी एग्जाम्पल है तुम उसमें खुद लॉजिक लगा के पता लगा सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नाइफ विथ विच वी कट थिंग्स ऑफ कोर्स। ठीक है, नाइफ का जो एक एंड होता है, लेट मी ड्रॉ अ नाइफ लाइक दिस। ठीक है, एक जो एज होती है नाइफ की वो होती है शार्प, और दूसरी जो एज होती है वो होती है ब्लंट एज। शार्प चीजों से, शार्प एजेस से चीजें जल्दी कट होती है, कट्स इजीली, मतलब किसी भी चीज के अंदर वो इजीली चली जाती है, घुस जाती है। ब्लंट डज नॉट कट, राइट? शार्प एज कट्स इजीली बट ब्लंट एज डजंट कट इजीली। ठीक है, तो इसमें भी अगर तुम देखोगे, जो शार्प एज होता है इसका एरिया कम होता है, लेस एरिया। थिन होता है ना, एकदम पतला, शार्प मतलब लेस एरिया। ब्लंट थोड़ा मोटा होता है, मोर एरिया। करेक्ट, नाइफ का एग्जांपल हो गया। सब में एक कॉमन चीज है, वो एरिया की है, याद रखना, ये मैं बताऊंगा मैं। फोर्थ एग्जांपल इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ओके यस, स्कूल बैग्स। स्कूल बैग का एक पिक्चर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। तो तुमने ये दो टाइप की स्कूल बैग्स देखी होगी। जनरली जो बच्चे प्रेफर करते हैं, या फिर बच्चों के लिए जो प्रेफर किया जाता है, वो ये टाइप का बैग है, बैकपैक, जिसको बैकपैक बोलते हैं। और इसके जो स्ट्रैप होते हैं ना, ये वाइड होते हैं, वाइड स्ट्रैप्स। इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइड होते हैं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉ स्ट्रिंग बैग। ड्रॉ स्ट्रिंग बैग्स। ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब उसमें ऐसी स्ट्रिंग होती है। तुमने अगर ये बैग कभी यूज किया है तो यू वुड नो दैट if you put heavy load inside these kind of bags, and if you put them on your shoulder, these strings, they are, because they are thin strings, they hurt more.
Okay, but if even if you put heavy books and whatever, these wide straps doesn't hurt much. They are comfortable actually, doesn't hurt much. ओके, फिर से एक बार यहाँ पे नोट करना कि थिन स्ट्रिंग्स जो ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा अंदर प्रेशर बनाती है। मेरे को ये यूज़ नहीं करना था वर्ड, बट फिर भी ठीक है। तो इसका जो एरिया है ना, वो कम होता है, लेस एरिया, एंड दीज वाइड स्ट्रैप्स हैव मोर एरिया। ओके, सो सी दिस इज द थिंग। तो अब तो मुझे लगता है 4 एग्जाम्पल मैंने दिए तुम्हें, स्कूल बैग का एग्जाम्पल, नाइफ का एग्जाम्पल, नेल का एग्जाम्पल, और बीच पे वॉकिंग और लाइंग डाउन का एग्जाम्पल। सो फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट in all these cases one new quantity can be understood, which is pressure. And pressure is directly proportional to thrust. Thrust जितना ज़्यादा, pressure उतना ज़्यादा, and pressure is inversely proportional to area. एरिया जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम, एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। सो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो थ्रस्ट मतलब फोर्स पे भी डिपेंड करती है, परपेंडिकुलर फोर्स पे, और एरिया पे भी डिपेंड करती है। थ्रस्ट से वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन से दैट प्रेशर is directly proportional to thrust upon area. T is thrust, A is area. Okay, so pressure is equal to K times thrust upon area. ये K क्या है? Constant of proportionality. क्या है ये? Constant of proportionality, जिसकी वैल्यू 1 है SI यूनिट्स में। सो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू thrust per unit area और thrust upon area. Pressure is thrust upon area. ठीक है, तो ये सारे केसेस जो भी हमने देखे हैं, इसका जो रीजन है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। सैंड पे वॉक करना डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा जो वेट है बॉडी का, वो जो थ्रस्ट एक्सर्ट करता है किस पे, सैंड पे, वो हमारे फीट के थ्रू एक्सर्ट करता है, और फीट का एरिया कम है। इसलिए हमारे फीट, हमारे बॉडी का जो वेट है उसका ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। द प्रेशर ऑफ आर वेट ऑफ द बॉडी is more when we are walking on the beach. That's why the feet sink in. But when we are lying down on the same beach with the same body, since the area of the whole body is more comparatively to the area of 2 feet, hence the pressure is less, and that's why the body does not sink in. Second example, nail. The pointed end of the nail is put into the wall more easily as compared with the blunt end, because the area of the pointed end is very less compared to the area of the blunt end. So the pointed end exerts more pressure on the wall, and it goes into the wall, it drives in the wall more easily than the blunt end. Knife. The sharp edge of the knife easily cuts through any surface, but the blunt end of the knife does not, because sharp edge of the knife has less area, so the pressure exerted by the sharp edge is more as compared to the blunt edge, and that's why it drives into any surface very easily. School bags. The school bags generally have wide straps because the pressure exerted by wide straps, since it has more area, will be less on the shoulder of the children, and hence it will not pain when you wear a school bag with wide strap. On the other hand, drawstring bags, they have strings, and if you put heavy books in these kind of bags and you wear it, you feel
pain on your shoulders. Why? Because these thin strings have less area, so they apply more pressure on your shoulder. The school bags with wider straps, they apply less pressure on your shoulder, and that's why because they have more area, and that's why they do not hurt you. ठीक है? So this is the whole concept of pressure. So what is the formula for pressure? Thrust upon area. हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. Pressure is thrust upon area. Now I told you what is thrust. Thrust is a normal force, perpendicular force. इसका SI यूनिट क्या है? Thrust का SI यूनिट है न्यूटन, राइट, बिकॉज इट्स अ फोर्स. एरिया का SI यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर SI यूनिट, प्लीज ये नोट कर लेना, of pressure, SI unit of pressure is Newton per meter square. Newton per meter square. SI unit of pressure is Newton per meter square. ठीक है? So ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका दूसरा नाम है पास्कल, नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट फिजिसिस्ट पास्कल. ठीक है? सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. इसका सिंबल है कैपिटल P स्मॉल a, पास्कल. ओके, सो द pressure exerted is said to be 1 pascal when a force of 1 newton acts on an area of 1 meter square. प्रेशर हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रेशर exerted is said to be 1 pascal when a force of 1 newton acts on an area of 1 meter square. ठीक है? तो प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं, प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोलते हैं. प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर तुम्हें फोर्स और एरिया बताए तो तुम प्रेशर आराम से निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग प्रेशर. बट ऐसा नहीं है कि मैंने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए. देर आर सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग प्रेशर्स इन योर डे टू डे लाइफ. जैसे कि some of them to be listed, and you can say you will come across them in your textbook, are why high rise buildings, high rise building का मतलब पता है? high rise building मतलब tall buildings, tall towers. Why high rise buildings have deep and wide foundations. फाउंडेशन होता है ना, हर एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है. फाउंडेशन के ऊपर वो पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है, राइट? फाउंडेशन अगर वीक है तो बिल्डिंग भी वीक होगा. फाउंडेशन जितना डीप और वाइड है, बिल्डिंग उतना स्ट्रांग होगा. और हाई राइज बिल्डिंग का फाउंडेशन डीप और वाइड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाई राइज बिल्डिंग्स का जो थ्रस्ट है ग्राउंड के ऊपर वो बहुत ज्यादा होता है. अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, डीप और वाइड नहीं है, तो क्या होगा कि ये बिल्डिंग का प्रेशर ग्राउंड के ऊपर ज्यादा होगा और बिल्डिंग धीरे धीरे सिंक होके नीचे चला जाएगा, जमीन के अंदर धस जाएगा, टूट भी सकता है पूरा बिल्डिंग. ठीक है? सो दैट्स व्हाई हाई राइज बिल्डिंग्स हैव डीप एंड वाइड फाउंडेशन. व्हाई आर you can say concrete sleepers kept beneath railway tracks. रेलवे ट्रैक्स के नीचे कंक्रीट के स्लीपर्स क्यों रखे होते हैं? तुमने देखे कभी कंक्रीट के स्लीपर्स देखे हैं या नहीं देखे? मैं दिखाता हूं, नहीं देखे.
ये देखा है कभी ये कंक्रीट के स्लीपर्स ऐसे? तो ये कंक्रीट के स्लीपर्स का क्या काम है? व्हाई आर दे लेड अंडर रेलवे, beneath railway tracks? Because railway रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो ट्रेन चलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैवी. सो उसका जो थ्रस्ट होगा इट विल बी इमेंस, एंड दैट थ्रस्ट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रेशर ऑन द ग्राउंड. और ग्राउंड पे किस पे चल रही हो? ट्रैक पे. और ट्रैक का सरफेस एरिया तो बहुत छोटा है. सो ट्रैक के नीचे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए स्लीपर्स रखे जाते हैं. सो द होल वेट ऑफ द ट्रैक of the train is distributed over the track. Whole weight of the tracks is distributed. Whole weight of the train over the track is distributed all over the sleepers, and the tracks do not sink into the ground. इसलिए वहां पे नीचे अगर तुमने देखा होगा तो वो कंक्रीट के कुछ पत्थर भी रखते हैं, छोटे छोटे कंकड़, which actually absorbs the pressure, distributes the pressure over a large surface area, so the pressure is less. फिर और एक है मिलिट्री टैंक्स. मिलिट्री टैंक्स के नीचे जो उसके जो ट्रैक्स होते हैं उसके व्हील के नीचे, दे आर वेरी वाइड. मिलिट्री टैंक्स हैव वाइड ट्रैक्स. उसको ट्रैक्स ही बोलते हैं ना, और क्या बोलेंगे, जो जिसके ऊपर मिलिट्री टैंक्स चलते हैं. let me show you tank. सो ये जो टैंक के नीचे तुम देख रहे हो, ये उसका जो ट्रैक होता है वो बहुत वाइड होता है. क्यों? क्योंकि टैंक्स बहुत हैवी होते हैं. टैंक्स आर वेरी हैवी एंड दे गो इन एनी टेरेन. मतलब ऐसा नहीं वो कंक्रीट के रोड पे चलते हैं, वो कच्चे ग्राउंड पे भी उसको चलाते हैं. और ये कच्चे मडी रोड पे ये धंसने नहीं चाहिए अंदर. इसके लिए इसके नीचे एक वाइड ऐसे ट्रैक्स होते हैं विच प्रोवाइड देम ह्यूज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया. सो उनका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर डायरेक्शन में, और प्रेशर कम हो, इसलिए वो अंदर सिंक ना हो जाए ग्राउंड में उसके वेट की वजह से. So these are the few, you can say, real life examples which we can talk about while discussing pressure and thrust and area. ठीक है? So pressure के बारे में जितनी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी थी वो मैंने तुम्हें बताई. अच्छा, स्लीपर्स और फुटवेयर के बारे में भी एक चीज़ है कि तुम्हें पता है लड़कियां, गर्ल्स, दे वेयर दिस हील्स. तो कुछ हील्स तो ऐसी होती है विच आर वेरी वेरी थिन, वेरी लेस सरफेस एरिया. थिन हील्स होती है, पेंसिल हील्स बोलते हैं इसको. तो पेंसिल हील बहुत डेंजरस होती है बिकॉज उसमें चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है. मैंने कभी पहन के ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि पेंसिल हील्स में जो लड़कियां चलती है, मतलब अलग स्किल लेवल है उनका. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है ये सब करने के लिए. ठीक है. तो ये जो पेंसिल हील्स है उनका, बिकॉज सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, तो दे विल एक्सर्ट लॉट ऑफ प्रेशर. ठीक है. सो एंड इट इज़ ईजियर टू वॉक विथ फ्लैट स्लीपर्स बिकॉज प्रेशर कम है तो वेट पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. फिर ऐसे बड़े ट्रक्स होते हैं, उनके वाइड टायर्स होते हैं और मल्टीपल टायर्स होते हैं. इसमें देखो कितने सारे टायर्स हैं. ये इसलिए होता है बिकॉज इसके ऊपर जो चीज़ रख के जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, दैट might be very heavy object which has to be transported from one place to another. So for transporting that very heavy object we require enough surface area so that its weight can be taken. Otherwise वो पूरा जो vehicle है वो नीचे धस जाएगा. ठीक है. ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की. स्कूल बैग्स के बारे में बात किया, स्लीपर्स लेट डाउन अंडर द ट्रेन के बारे में बात किया, हेवी मशीनरी, हेवी कार के मोर देन 6 टायर्स के बारे में बात किया, शार्प नाइफ, ऑल पिन. ऑल पिन तुमने देखा होगा, जो तुम्हारे नोटिस बोर्ड का पिन होता है ना,
It's very easy to put the ball pin from its pointed end, but not from the blunt end. Why? Because less area of that pointed end creates more pressure. So it's easy to put into that notice board. ठीक है? So this was all I could talk about force and pressure. अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये देखो, इंटरेस्टिंग है. A cubical block of edge 2 सेंटीमीटर. ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक. क्यूब देखा है तुमने कभी? तुमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ बच्चों ने तो पढ़ लिया है, तो उनको पता होगा क्यूब क्या है. बाकी लोगों को 8th में शायद पढ़ाया होगा. नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ क्यूब क्या है. ठीक है, दिस इज अ क्यूब जिसकी साइड है ए. अच्छा, ये ए की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ. एंड मास इज 5 kg. m is equal to 5 kg. Calculate the thrust of the block on the tabletop. अच्छा, thrust is equal to weight, है ना. thrust तो perpendicular force होता है, which is nothing but weight, which is equal to m into g, which is equal to 5 into 9.8, right? क्योंकि g की वैल्यू 9.8 हम लेते हैं, तो 5 into 9.8 कितना हो जाएगा ये? 49, क्योंकि 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 होगा, तो 9.8 इंटू 5 49 हो जाएगा. 49 न्यूटन हो जाएगा. अगर जी की वैल्यू 10 लेते तो 50 न्यूटन आता, कोई ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, तो थ्रस्ट निकाल लिया. नाउ प्रेशर. सो प्रेशर मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया. ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट क्या है? इट इज 49 न्यूटन. Okay, area. Now if you see the area is not given, but we can find the area. अभी ये क्यूब है, तो इसका जो बेस एरिया है ये वाला, that will be a into a. ठीक है, so area is equal to a square, that is 2 into 2, that is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन हमें तो एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए, बिकॉज सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है. सो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, याद रखो इसको. सेंटीमीटर टू मीटर इज डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर टू मीटर इज डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर विल बी डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर. क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हो गए तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 10,000. डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 4, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 4. सो 4 अपॉन 10 रेज टू 4 मीटर स्क्वायर, या 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हो गया. रिमेंबर कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन यू शुड रिमेंबर वेरी वेल. ओके, so pressure is thrust upon area. Thrust is 49 Newton. Area is 4 multiplied by 10 raised to -4 meter square. ठीक है, सो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 4. ये तो ऊपर चला जाएगा, द होल अपॉन 4. सो 49 डिवाइडेड बाय 4. अच्छा, ये आ जाएगा पास्कल में. ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल सी कि कितना आता है. तो 49 का हाफ कितना होता है? 49 का हाफ अराउंड मेरे ख्याल से 24.5. ठीक है, 24.5. 24.5 का हाफ 12.25. लेट्स चेक. 49 डिवाइड बाय 4, 12.25 इज करेक्ट. ठीक है, सो योर प्रेशर विल बी 12.25 पास्कल्स. Thrust is 49 Newton and pressure is 12.25 Pascal. Let's check. 49 Newton, 12.25 into 10 raised to 4 तो हमने लिखा ही नहीं यार. देखा, ऐसी सिली मिस्टेक मेरे से भी होती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए. into 10 raised to 4 पास्कल्स. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दोनों लिख सकते हो. अच्छा, ये लोग ने लिखा है 1.225 into 10 raised to 5.
मैंने लिखा है 12.25 इंटू 10⁻⁴, दोनों एक चीज है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करूंगा टू द लेफ्ट तो ये हो जाएगा 1.225, लेकिन क्योंकि आई हैव मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट, ये नंबर छोटा हो गया, पहले 12 पॉइंट समथिंग था, अभी 1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो यहाँ पे एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, 4 से लेके 5 हो जाएगा। दैट तो तुम्हें पता ही होगा अभी, ठीक है। सो 1.225 पास्कल भी करेक्ट है, 12.25 इंटू 10⁻⁴ पास्कल भी करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ये नोट कर लेना, अगर ये नोट नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, फिर बोलोगे नहीं समझा, ये मत करना प्लीज, क्योंकि अभी नहीं समझने वाली कोई बात नहीं है, वीडियो देख के तुम कभी भी समझ सकते हो, नहीं समझा तो, ठीक है। कोई ऐसा क्रूशियल इश्यू आ जाएगा जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। ओके, एग्जाम्पल 2 क्या है? अ ड्रॉइंग पिन इज पियर्स्ड इन अ वुडन टेबल विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो फोर्स दिया है 5 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिन ऑन द टेबल इफ द एरिया ऑफ द पॉइंट इज 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। वेरी नाइस। सो ये जो एरिया है इसको कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। सबसे पहले मिलीमीटर टू मीटर मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, या किससे डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? मिलीमीटर टू मीटर, छोटे से बड़े क्वांटिटी में जाना है तो डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100 होता है, मिलीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 1000 होता है, लेकिन अगर मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाता है तो डिवाइड बाय 1000 स्क्वायर करना पड़ेगा। सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, तो मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, तो एरिया हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से देखना, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये 10⁻6 ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻6 बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करता हूँ, 0.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव किया 1 प्लेस टू द राइट। जब मैं इसको 1 प्लेस टू द राइट मूव कर रहा हूँ तो ये मतलब वैल्यू 0.02 से 0.2 बढ़ गई वैल्यू, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। -6 -1 कितना होता है? -7, ठीक है। सो मैंने एरिया को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब थ्रस्ट है। सो फोर्स इज 5 न्यूटन अपॉन 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 which is 5 upon 0.2 multiplied by 10⁻⁷, which is 50 upon 2 into 10⁻⁷, right? इंटू 10 कर दिया यहाँ पे अलग से मैंने डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए। सो 25 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। 25 इंटू 10⁻⁷ लिखो या 2.5 इंटू 10⁸ पास्कल लिखो, दोनों एक बात है। 25 इंटू 10⁷ या 2.5 इंटू 10⁸ पास्कल, दोनों एक बात है, ठीक है। सिर्फ यूनिट्स में ध्यान रखना कि सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम में होने चाहिए, तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो व्हाट इज अ फ्लूइड? इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, प्लीज रिमेंबर इट। A substance which can flow is called a fluid. All liquids and gases are thus fluids. ठीक है, gases and liquids they all can flow. That's why they are known as fluids. Solid exerts pressure on a surface due to its weight. So solid को किसी surface के ऊपर रखोगे, उस surface के ऊपर वो pressure exert करेगा due to its own weight. Fluid also exerts pressure, बट फ्लूइड का प्रेशर एक्सर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए फ्लूइड प्रेशर को अलग टॉपिक में पढ़ा जाता है। फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट। अ सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर ओनली ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड, दैट इज एट इट्स बॉटम, but a fluid exerts pressure on the bottom as well as on the walls of the container due to its tendency to flow. Just imagine that you have a closed container,
a closed container. ठीक है, and this closed container is filled with a fluid. एक closed container मान लेते हैं हम लोग, and इसके अंदर fluid है. अब मैंने यहाँ पे liquid दिखाया है गलती से. I think I should show a gas, तो ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आएगा. Now what is happening? The gas is occupying the complete volume inside this closed space. पूरा वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करता है. ये और एक कैरेक्टरिस्टिक है गैसेस की, that gases completely fill the container in which they are stored. यू रिमेंबर ये जो पॉइंट है गैसेस का, जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमने कहाँ पे पढ़ा था? दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 8th, आई थिंक. In class 8th, let me remember the name of that. Kinetic theory of matter. Yes, kinetic theory of matter. तो kinetic theory of matter में हमने जब gases की बात की थी, तो solids, liquid और gases के जो differences थे, उसमें on the basis of kinetic theory of matter we concluded that since the particles of gases are free to move, so that's why they completely fill the container in which they are stored. And अभी हमने पढ़ा कि fluids होते हैं gases, and fluids have a tendency to flow. Fluids have a tendency to flow. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माइंड में कि फ्लूइड के पास जो टेंडेंसी है फ्लो होने की, वो किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, फ्रंट, बैक, कौन सी डायरेक्शन में? In all direction. Fluids have a tendency to flow in all directions, except liquids which do not flow upwards. Liquid ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होते, लेकिन गैसेस, खास करके गैसेस एक ऐसे फ्लूइड्स है जिसकी टेंडेंसी होती है टू फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस. सो मतलब गैस राइट की तरफ भी फ्लो करना चाहेगा, लेफ्ट की तरफ भी फ्लो करना चाहेगा, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, वो हर डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा. तो जब वो फ्लो करने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी करेगा, तब क्या होगा कि इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. हेंस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अभी समझ में आया? पहले गैसेस कंप्लीटली किसी कंटेनर को फिल कर देते हैं जिसमें भी उसको स्टोर करते हैं, and then they have a tendency to flow in all direction and hence they exert pressure. What about liquids? देखो liquids का भी gases जैसा ही है because वो भी fluids है, but what difference in the property or you can say characteristic of liquid which is visible is that कि liquids upper part of the container पे pressure exert नहीं करेंगे. अगर उसको कंप्लीटली फिल नहीं किया है, तो अगर हाफ लिक्विड फिल है ये सेम कंटेनर में, तो वो लेफ्ट, राइट और बॉटम वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं किसी भी कंटेनर को, लिक्विड्स. सो लिक्विड्स का क्या होता है कि लिक्विड्स हैव अ फ्री सरफेस. जिसका अपर सरफेस होता है वो फ्री होता है. गैसेस का कोई सरफेस ही नहीं होता है. लिक्विड्स का हमेशा एक अपर फ्री सरफेस होता है जो हमेशा तुम देख सकते हो. गैसेस में नहीं होता है. तो ये दोनों फ्लूइड्स, गैसेस और लिक्विड में, ये फंडामेंटल डिफरेंस है. ठीक है, तो प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर का तो एक आइडिया आ गया. फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट्स and in downward direction, but it exerts pressure in front, back, left and right direction and upward direction in case of gases also, because it has the tendency to flow. ठीक है, अ फ्लूइड कंटेन्ड इन अ वेसल एक्सर्ट्स प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड इन ऑल डायरेक्शंस. इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है. मैं पूरा नहीं रीड करूंगा, लेकिन आई कैन टेल यू वेरी इजीली. एक कंटेनर को हमने फिल किया एक फ्लूइड से, एक लिक्विड से, और इस कंटेनर में दो होल है. ठीक है, तो ये दोनों होल्स में यू विल बी एबल टू सी दैट ये दोनों होल्स अलग अलग जगह पे कर दो, अलग अलग पोजिशंस पे. यू विल बी एबल टू सी दैट वाटर फ्लोज आउट थ्रू दिस होल.
मतलब वाटर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर वॉल नहीं होती तो वाटर बाहर जाने की कोशिश करता, वॉल है इसकी वजह से वो रुका हुआ है एक जगह पे, लेकिन होल होता वॉल में तो होल से बाहर निकल जाता। अच्छा, ये और एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि जितना ज्यादा तुम बॉटम की तरफ जाओगे, होल जितना बॉटम के पास होगा, उतना ज्यादा वहां पे फोर्स होगा लिक्विड का, और फोर्स से वो बाहर निकलेगा। दैट मीन्स द लिक्विड प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि liquid or any fluid exerts pressure on the walls of the container in which they are stored, and this fluid pressure increases with the depth, increases with the depth। हर जगह वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन ये जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है जो जिसकी हमने बात की, फ्लूइड प्रेशर, इसका कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ये जो डेरिवेशन है ना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो। डेंसिटी के बारे में तुम क्लास 8th में पढ़ के आए हो, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो डेंसिटी रो, pressure exerted by a liquid of density rho at a depth h is P is equal to h rho g। प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर का फॉर्मूला है ये h रो g। इसमें h का मतलब क्या है? h इज द डेप्थ एट विच, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, सपोज ये फ्री सरफेस है, तो इस पॉइंट पे हम अगर लिक्विड प्रेशर ढूंढ रहे हैं, तो इस फ्री सरफेस से इस पॉइंट का r से q का डिस्टेंस कितना है, मतलब डेप्थ कितनी है, वो है h। तो h हो जाएगा तुम्हारा डेप्थ। रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेप्थ क्या है? h। और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स। एक है हाइट और डेप्थ h, दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जिसके अंदर का प्रेशर तुम ढूंढ रहे हो, और तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे। सो मेनी स्टूडेंट्स दे माइट हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड कि ये प्रूफ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। देखो, पहले कुछ एग्जाम्स में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और तुम देखोगे तुम्हारी जो एक्सरसाइज है फाइनल, उसमें भी ये प्रूफ का क्वेश्चन है। तो लेट्स डू दिस प्रूफ। ये तुम एटलीस्ट तुम्हारे माइंड में रख लो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये प्रूफ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। कंसिडर अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। एक वेसल है जिसमें एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है। लेट द लिक्विड बी स्टेशनरी। ठीक है, लिक्विड को स्टेशनरी रखते हैं, क्योंकि अगर ये फ्लोइंग लिक्विड होगा तो ये प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब उसका फॉर्मूला अलग है। हम स्टेशनरी लिक्विड में फ्लूइड प्रेशर ढूंढ रहे हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेशर एट डेप्थ h, कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सरफेस pq ऑफ एरिया a एट डेप्थ h। हम ये वाले सरफेस पे, ये pq सरफेस पे प्रेशर निकाल रहे हैं। ये pq सरफेस का जो डेप्थ है फ्री सरफेस से, वो कितना है? h। और ये pq सरफेस का जो एरिया है वो कितना है? a। Capital A is the area of this surface PQ, and H is its depth from free surface. Okay. At depth h below the free surface xy of the liquid, the pressure on surface PQ will be due to the weight of the liquid column above the surface PQ। ये जो PQ है सरफेस, उसके ऊपर कितनी लिक्विड कॉलम है, कितनी बड़ी लिक्विड कॉलम है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब वो लिक्विड कॉलम क्या है? वो लिक्विड कॉलम है, लेट मी चेंज द कलर, वो लिक्विड कॉलम है ये। वी आर कंसर्न विद दिस लिक्विड कॉलम। दिस लिक्विड कॉलम विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन PQ, क्योंकि उसका जो वेट है ना ये लिक्विड कॉलम का, अब वेट तो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, लिक्विड का भी वेट होता है, लिक्विड मैटर है, तो वो वेट PQ के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, ओके। The liquid, that is the liquid contained in cylinder PQRS of height h with PQ as its base and top face RS lying on the free surface XY of the liquid। मतलब ये जो सिलेंडर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है, वो सिलेंडर में के अंदर जितना फ्लूइड का वॉल्यूम है
वो फ्लूइड का वॉल्यूम इस सरफेस PQ के ऊपर अपना वेट एक्सर्ट करेगा। सो थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द सरफेस PQ, थ्रस्ट पता है ना तुम्हें, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। PQ पे कितना थ्रस्ट होगा? Thrust will be equal to the weight of the water contained in the volume of the cylinder PQRS। ठीक है, weight of the liquid column PQRS। अच्छा, weight को कैसे लिखा है वो लोग ने, देखो इसको लिखा है वो लोग ने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम PQRS मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय G। लेट मी टेल यू कि इसको कैसे वो लोगों ने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख दिया है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, देखो वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी तो है हमारे पास, मास किधर है? तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक्चुअली ये डी है जिसको हम लोग ने सिंबल दिया है रो, वी रो जी। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू वी रो जी। वी क्या है? वॉल्यूम। रो क्या है? डेंसिटी। तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया? रो इंटू वी या वी इंटू रो। तो वी इंटू रो क्या है? मास, और जी तो एज इट इज है। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम PQRS मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, वॉल्यूम की जगह पे वो लोग ने क्या लिया है? वॉल्यूम की जगह पे वो लोग ने लिखा है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये जो बेस का एरिया है उसको ये हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट वॉल्यूम ऑफ PQRS। Area of base multiplied by height is volume of PQRS। Area of base PQ multiplied by height is equal to volume of PQRS। ठीक है, multiplied by density multiplied by G। तो area of base is A, height is H, rho is the density and G is the acceleration due to gravity। तो ये AH rho G ये क्या है पता है? दिस इज द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द सरफेस PQ। अब हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो वी जस्ट फाउंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर विच इज AH rho G अपॉन एरिया ऑफ द surface on which we have to find the thrust is A, so H rho G। H rho G ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर exerted by a liquid column on any surface which is immersed in it, which is at a depth H इन द लिक्विड। ये तुम्हारा फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले नेक्स्ट पार्ट में, बट उसका एक आइडिया अभी से तुम्हें दे देता हूँ। मैंने तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था पिछले थोड़ी देर पहले, पिछले वीडियो मतलब यही वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की थी। तो हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर भी तो एक्ट करेगा। सो टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड, टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ इनसाइड द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखा है यहाँ पे P नॉट, P0 मतलब P नॉट, ठीक है, प्लस H रो जी, H रो जी हमने अभी निकाला। तो टोटल प्रेशर एट इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ H हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर याद रखना है फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन। अच्छा, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फ्लूइड प्रेशर को? तीन फैक्टर है। डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस, याद रखो फॉर्मूला है H रो जी, प्रेशर का फॉर्मूला है H रो जी फ्लूइड प्रेशर का। तो जितना ज्यादा H उतना ज्यादा प्रेशर, मतलब जितनी ज्यादा डेप्थ पे तुम जाओगे उतना फ्लूइड प्रेशर बढ़ेगा। सो इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। डीप सी डाइवर्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो एक स्पेशल डाइविंग सूट पहन के जाते हैं, बिकॉज एट ग्रेट डेप्थ्स beneath the surface of the liquid, at great depths beneath the surface of the liquid, surface of water, the pressure increases, the fluid pressure increases, and at very great depths your body can get crushed by this pressure. It's so much, so in order to protect your body you need to wear a special diving suit। ठीक है, तो डेप्थ जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है फ्लूइड प्रेशर, जितनी लिक्विड या फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा उतना प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, उसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लो उस पर उतना प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर तुम दो लिक्विड लेते हो वाटर एंड मर्क्यूरी, तो वाटर के अंदर
डेप्थ एच पे जितना प्रेशर होगा उससे बहुत ज्यादा प्रेशर, एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो 13 टाइम्स ज्यादा प्रेशर मर्क्यूरी के अंदर होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मर्क्यूरी बैरोमीटर जब हम पढ़ेंगे तो मर्क्यूरी की काफी बातें करेंगे हम लोग। एंड द लास्ट पॉइंट ऑन विच फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर increases with increase in acceleration due to gravity, which is almost constant at all the points on the surface of earth. Yeah, it slightly varies, so according to that variation fluid pressure will also vary. Okay, so at a particular place on earth surface, the acceleration due to gravity g is constant. Therefore pressure at a point in a liquid is directly proportional to the depth below the free surface and directly proportional to the density of the liquid. However, the pressure inside liquid does not depend on shape and size of vessel in which the liquid is contained. ये लिक्विड कौन से वेसल में कंटेन्ड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके शेप और साइज पे। एंड एरिया ऑफ सरफेस पे भी वो डिपेंड नहीं करता प्रेशर। ठीक है, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। Inside the liquid, pressure increases with increase in depth from its free surface. In a stationary liquid, pressure is same at all points in a horizontal plane. पहला पॉइंट है कि जितना तुम डीप जाओगे लिक्विड के अंदर उतना प्रेशर बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझने वाली बात है, हम समझ भी गए इसको। स्टेशनरी लिक्विड में प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो, वहां पे लिक्विड प्रेशर सेम रहेगा। स्टेशनरी लिक्विड में प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। ओके, सो यहाँ पे सपोज मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो ये पॉइंट में राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ओब्लिक प्रेशर्स, हर डायरेक्शन में जितना भी प्रेशर होगा वो सेम होगा इस पॉइंट के अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से। ठीक है, सो प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। तुम समझ गए हो इस चीज को, लेकिन इसको लर्न भी करना पड़ेगा। प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अलग अलग डेप्थ पे प्रेशर अलग अलग होता है। जितनी, अच्छा, मैंने कुछ गलत बोला। हाँ, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड्स। डिफरेंट लिक्विड्स में सेम डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर होगा। प्रेशर इतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी। सो डेंसिटी ज्यादा किसी एक लिक्विड की, तो उसका प्रेशर भी उस डेप्थ पे ज्यादा होगा। ठीक है, एंड अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। किसी भी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे तो वो अपना लेवल खुद सीख करके वहां पे वो स्टेशनरी हो जाता है। सो इट हैज वन फ्री सरफेस एट दैट पर्टिकुलर लेवल। तो ये 5 पॉइंट्स है, लॉज है लिक्विड प्रेशर के। ये लॉज गवर्न करते हैं कैसे लिक्विड बिहेव करेगा इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये लॉज पता है तो तुम आगे लिक्विड को इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, फ्लूइड्स, खास करके लिक्विड का है, फ्लूइड की बात हम नहीं करेंगे, बट हाँ लिक्विड तो डेफिनेटली ये लॉज फॉलो करता है। अच्छा, सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर P इज इक्वल टू एच रो जी। नंबर 1, इन सी वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजंस में इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, देख लो ध्यान से। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, गिव रीजंस के लिए आ सकते हैं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दे देना। इन सी वाटर द प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट एट द सेम डेप्थ इन रिवर वाटर। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। सो सी वाटर की जो डेंसिटी है ना, दैट इज ग्रेटर देन द रिवर वाटर। तो तुम अगर सेम डेप्थ पे जाओगे सी वाटर में और रिवर वाटर में, यू विल फील मोर प्रेशर इन सी वाटर कंपेयर्ड विथ रिवर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। बॉटम पार्ट में डैम की जो वॉल होती है दैट इज थिकर। बॉटम पार्ट में डैम का वॉल थिकर इसलिए होता है बिकॉज डैम में सबसे पहले तो देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डैम इज अ रिजर्वॉयर which contains huge quantity of water. Wall of the dam is basically a barrier to stop the flow of water. वाटर को एक जगह पे रोकने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए डैम बनाते हैं। तो डैम का वॉल वाटर के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, राइट? नाउ एज यू मूव डाउन, एज यू मूव डीपर एंड डीपर,
as you can see these red arrows, the pressure on the wall goes on increasing. Just imagine such a huge quantity of water stored in dam, and as you move deeper and deeper, the pressure goes on increasing. There is a tremendous pressure at the most, you can say, bottommost part of the dam. So at that part, to withstand this tremendous pressure of this stored water, the dam has to be made very strong. And one way of making it very strong, the wall of the dam, we can make it huge, thick wall. जितनी ज्यादा thickness उतना ज्यादा strong dam होगा. ठीक है. So to withstand the pressure of a large quantity of water at greater depths, the wall of the dam is made thicker at the bottom. ऐसे लिख सकते हो. वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई. किसी भी टाउन और कॉलोनी में तुमने वाटर सप्लाई टैंक देखी होगी. सो व्हाई इज इट प्लेस्ड हाई? जितनी ज्यादा हाइट होगी, ग्रेटर इज द हाइट, मोर विल बी द प्रेशर ऑफ वाटर इन द टैप्स ऑफ अ हाउस. इसलिए जस्ट तुम्हारे बिल्डिंग के ऊपर वाटर का टैंक है, ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि सी दे यूज पंप्स टू गेट दिस वाटर एट टॉप ऑफ योर बिल्डिंग. वहां से फिर वाटर अपने आप वाटर प्रेशर की वजह से नीचे तुम्हारे टैप्स में आता है. एंड बिकॉज द टैंक इज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जितना हाई होगा बिल्डिंग उतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा सबको नीचे. ठीक है. इसलिए टू एंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स वाटर विथ अ गुड प्रेशर, water supply with a good pressure, the tank is kept at a greater height. ठीक है. ओके. डाइवर सूट, मैंने अभी डीप सी डाइवर्स के बारे में बताया तुम्हें. चलो छोड़ो, डीप सी डाइवर्स छोड़ दो. तुमने अगर अंडर वाटर स्विमिंग ट्राई किया है, so you might have noticed that the people who are whoever goes underwater and dives, inside water swimming जो होता है वहां पे, you feel that there is a pressure of water on your whole body. और जितना तुम डीप जाओगे उतना ये प्रेशर बढ़ेगा. तो जस्ट इमेजिन सी के अंदर अंडर वाटर डाइव करने वाले को कितना प्रेशर महसूस होता होगा. और अगर उनको थोड़ा डीप जाना है, और they cannot go without a diver suit, because then the liquid pressure will be so high that their body can get crushed under this tremendous pressure. So इसलिए they wear this deep sea diving suit, and if required they take oxygen cylinder also with them. But the idea is ये जो protective suit है, that is made from glass reinforced plastic or cast aluminium. ठीक है. The pressure inside the suit is maintained at 1 atmosphere. The size of gas bubbles inside the water. मैं तुम्हें एक फिगर दिखाता हूँ. You will understand it very well. I'm sure तुम लोगों ने ये कार्टून देखा होगा. ऐसा तो स्केच हमेशा हम बनाते ही है, और हमने देखा ही है फिश के बारे में. लेकिन ये जो फिश बात कर रहा है उसका एक सिंबल है. अच्छा, इसका ये जो बबल्स है ना, वो उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है जो फिजिक्स से रिलेटेड है. ठीक है. ये बबल्स का क्या सिंबॉलिज्म है कि जो भी बबल्स एक 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 सर्टेन डेप्थ से इमर्ज होते हैं, और जब वो बबल ऊपर की तरफ जाता है तो उसका साइज बढ़ता है. गैस बबल का जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो जाता है. ठीक है. और जब वो सरफेस पे रीच करता है तो वो फिर वहां पे जाके बर्स्ट हो जाता है बबल. ठीक है. तो ऐसा क्यों दिखाते हैं, हाउ व्हाई डू दे शो लाइक दिस? इसका बहुत सिंपल रीजन है कि एज द लिक्विड प्रेशर, एज द डेप्थ डिक्रीजेस, द लिक्विड प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस. मतलब ये बबल जैसे जैसे ऊपर जाएगा सरफेस की तरफ, डेप्थ कम होती जाएगी, लिक्विड प्रेशर कम होगा, और बबल के ऊपर अगर प्रेशर कम हो गया तो उसकी साइज बड़ी होती जाएगी. एंड फाइनली व्हेन इट एस्केप्स वाटर, वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब गैस रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में. तो ये जो स्केच है या कार्टून है, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, मतलब ये सिर्फ फिक्शनल पर्पसेस के लिए नहीं है. इट्स अ सिंबॉलिक, फिजिक्स का एक फिनोमिना दिखाता है ये. ठीक है. तो जब भी हम बबल्स बनाते हैं तो हम लोग वैसे ही साइज दिखाते हैं, दैट एज द बबल राइजेस अप इट्स साइज विल इंक्रीज. Okay, so as the gas bubbles rise due to decrease in depth, the pressure due to water column decreases, so the total pressure exerted on the bubble decreases.
According to Boyle's law, the volume of bubble increases due to the decrease in pressure. That is, the bubble grows in size. When the bubble reaches the surface of liquid, total pressure exerted on it becomes just equal to the atmospheric pressure, only which is minimum, and so the size of the bubble on the surface becomes maximum. ठीक है, so size of the gas bubble inside the water is also a consequence of liquid pressure. So there are 5 consequences of liquid pressure. ये 5 consequences तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, और इनके ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे मोस्टली गिव रीजंस आएंगे तो तुम्हें अप्रोप्रिएट आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स या फिर पास्कल्स लॉ. ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स या फिर पास्कल्स लॉ. देखो, हम लोग सिर्फ हमने फ्लूइड प्रेशर से तो शुरुआत की है, लेकिन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर डिस्कशन इन फ्लूइड प्रेशर इनसाइड लिक्विड्स ओनली. हम गैसेस के बारे में इतनी बात नहीं कर रहे. वी विल टॉक एट सम इंस्टेंसेस, बट जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड प्रेशर. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हर जगह प्रेशर इन लिक्विड्स मेंशन किया हुआ है. ओके, चलो. So we know that pressure due to a liquid at a point in a liquid of density rho and a depth h below its free surface is P is equal to h rho g. Obviously, the pressure difference between any 2 points x and y in a stationary liquid will depend only on the difference in vertical height between these 2 points. Delta h मतलब difference in height. Delta, ये triangle को बोलते हैं delta. Now, if by some means the pressure at one point x is increased and the pressure at some point y will also increase by the same amount, so that the difference in pressure between the 2 points x and y may remain the same. मतलब अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है x और y, दोनों अलग अलग हाइट पे है, अगर x पे मैंने प्रेशर बढ़ाया तो y पे भी प्रेशर बढ़ेगा. मतलब दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बिकॉज दोनों पॉइंट्स की जो हाइट का डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है. ठीक है, यही प्रिंसिपल है ये पास्कल्स लॉ का, मैं जो अभी बताने वाला हूं. तो द प्रेशर एक्सर्टेड एट अ पॉइंट x इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू द पॉइंट y. दिस इज पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. So किसी भी confined liquid पे अगर तुम प्रेशर एक्सर्ट करते हो, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर एक लिक्विड है. ठीक है, इसके ऊपर मैंने लगाया है एक पिस्टन. दिस इज द पिस्टन. ठीक है, यहाँ पे लिक्विड. अब ये लिक्विड में मैं 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ. एक पॉइंट यहाँ पे है P और दूसरा पॉइंट यहाँ पे Q. ठीक है, दोनों पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, इनकी जो हाइट का डिफरेंस है उससे ही पता चलेगा उनकी प्रेशर का डिफरेंस कितना है, क्योंकि G और रो तो दोनों के लिए सेम है. G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, H रो G पे. रो और G दोनों के लिए सेम है, क्या डिफरेंट है, H. तो अगर मैं प्रेशर एक्सर्ट करता हूं तो पॉइंट P पे जो प्रेशर होगा और पॉइंट Q पे जो प्रेशर होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर पॉइंट P पे प्रेशर बढ़ता है तो पॉइंट Q के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा. अगर पॉइंट P पे प्रेशर कम होता है तो Q के ऊपर भी प्रेशर कम होगा. मतलब दोनों का, अगर पॉइंट P का प्रेशर बढ़ता है तो पॉइंट Q का बढ़ रहा है, अगर पॉइंट P का कम हो रहा है प्रेशर, पॉइंट Q का भी कम हो रहा है. मतलब दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है, डिफरेंस इन द प्रेशर at points P and Q inside a confined liquid is always the same. That means जो प्रेशर में एक्सर्ट कर रहा हूं वो इक्वली और अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम पॉइंट P टू Q. अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट P टू Q की बात नहीं है. ये प्रेशर जो मैं लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट कर रहा हूं, दैट इज एक्सर्टेड, दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड. ये प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है in all directions throughout the liquid. ठीक है, this can be demonstrated by the following experiment. Take a glass flask having narrow tubes coming out from its sides and bottom. ये देखो, एक हमने फ्लास्क लिया है
जिसके अंदर हमने ट्यूब्स अटैच की है, बॉटम से ट्यूब अटैच की है, साइड से अटैच की है, अलग अलग डेप्थ पे अटैच की है। ठीक है, ट्यूब की सबकी जो हाइट है, मतलब सबका जो लेवल है वो सेम। ठीक है, अब देखो, द फ्लास्क इज प्रोवाइडेड विथ एयर टाइट पिस्टन। ये पिस्टन है, पिस्टन इज जस्ट लाइक यू कैन से समथिंग विच पुशेस द वाटर। जैसे तुम्हारे इंजेक्शन में होता है पिस्टन, पिचकारी में होता है पिस्टन, पिस्टन वही पिस्टन है ये, विच पुशेस द वाटर। तो उसके माउथ पे एयर टाइट पिस्टन हमने लगा दिया है। फिल द वाटर, फिल द फ्लास्क विथ वाटर, द वाटर इन ईच ट्यूब विल बी एट द सेम लेवल। ठीक है, ये लिक्विड प्रेशर का एक लॉ है कि लिक्विड अपना जो लेवल है खुद सीक करता है। तो हर एक ट्यूब में, हर एक ये जो हमने ट्यूब अटैच की है उसमें इनिशियल लेवल ऑफ वाटर सेम रहेगा। ठीक है, now push the piston down into the flask gently. It is observed that jets of water rises out from each tube reaching the same height which is shown by upper dotted colored line. दिख रहा है तुम्हें ये जो पानी निकल रहा है, पानी का जो स्ट्रीम या जेट या फ्लो निकल रहा है, they all these all flow rise to the same height. These all flow rise to the same height. That shows that liquid pressure is transmitted equally and undiminished throughout the liquid at different points. तुम ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला या ये वाला, प्रेशर हम यहां से एक्सर्ट कर रहे हैं, ये प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिश ट्रांसमिट हुआ है डिफरेंट लोकेशंस इन द लिक्विड, which is proved by this equal heights of jets which emerge out of the pipe. This shows that pressure applied to the enclosed liquid is transmitted equally in all directions everywhere inside the liquid. यही तो पास्कल्स लॉ है। ये पास्कल्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर से बोलता हूँ, पास्कल्स लॉ क्या है ये तुम्हें लर्न करना है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। Pascal's law states that pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. लिक्विड के अंदर, कन्फाइंड लिक्विड के अंदर जो भी प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं वो इक्वली और अनडिमिनिश्ड वे में ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया है। इसके कुछ एप्लीकेशंस मतलब इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस है जो हमें पढ़ने हैं। हाइड्रोलिक मशीन सच एज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये तीनों हमें पढ़ना है, आर बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स। तो हाइड्रोलिक मशीन, ओवरऑल हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ ईच हाइड्रोलिक मशीन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इज दैट, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? दैट अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन is transmitted to produce a large force on a bigger piston. मतलब ये जो पास्कल्स लॉ है जो लिक्विड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर हमने शुरुआत किया, फिर हमने लिक्विड प्रेशर पढ़ा, लिक्विड प्रेशर का वैल्यू निकाला, उसका फॉर्मूला निकाला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े, फिर पास्कल्स लॉ पे आए जो इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ये पास्कल्स लॉ हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स में। ठीक है, तो याद रखो सारी चीजें कनेक्टेड है। ऑल्दो इसके बाद वाले चैप्टर में ये सारी चीजों का कोई यूज नहीं है, लेकिन ये दोनों चैप्टर 4 एंड 5 बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए आई एम श्योर तुम्हारी एग्जाम में अगर सिर्फ चैप्टर 5 आ रहा होगा, फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि चैप्टर 4 का वीडियोस पहले देखो, फिर चैप्टर 5 तुम्हें अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे तुम ये फ्लूइड प्रेशर के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ऑल्दो ये पास्कल्स लॉ वहां पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए अगर तुम पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, फिगर 4.6 shows two cylinders P and Q connected by horizontal tube R. ये ओके, आई एम सॉरी, ये हाइड्रोलिक प्रेस है, हम इसकी बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन, दो सिलेंडर है तुम्हारे पास, दोनों सिलेंडर में लिक्विड है, दोनों सिलेंडर आपस में कनेक्टेड भी है पाइप आर के थ्रू, दोनों में सेम लिक्विड है। ठीक है, मतलब ये लिक्विड यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, लिक्विड कोई अलग अलग नहीं है, एक ही लिक्विड है, दोनों मशीन कनेक्टेड भी है। ठीक है, दोनों कंटेनर अलग अलग है। एक चीज नोट करो, ये जो सिलेंडर P है वो छोटा है, सिलेंडर Q बड़ा है। मतलब ये जो A1 है, एरिया ऑफ द पिस्टन ऑन प्लेस्ड ऑन द सिलेंडर P, वो छोटा है, स्मॉल एरिया,
A2 area of the piston placed on cylinder Q is larger. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक वेट रखते हैं सिलेंडर P के पिस्टन के ऊपर ऑफ एरिया A1. अब ये वेट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब वेट खुद एक फोर्स होता है ऑन एरिया A1. तो कैन यू टेल मी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेट or pressure exerted by on the piston of cylinder P? The pressure exerted on piston of cylinder P will be P1, which is equal to thrust upon area. Thrust is F1, which is the weight, and area is A1. So P1 is equal to F1 upon A1. तो ये P1 क्या होगा पता है? ये P1 throughout the liquid इक्वली और अनडिमिनिश्ड वे में ट्रांसमिट हो जाएगा. ये जो प्रेशर है P1, इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली इन अनडिमिनिश्ड वे इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब यही प्रेशर P1 यहां पे भी ट्रांसमिट होगा. ठीक है, यहां पे जब वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो वो P2 बन जाएगा. क्यों P2 बन जाएगा? क्योंकि यहां पे जिस एरिया पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो तो अलग एरिया है. ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या होगी? P2 विल बी F2 by A2. F2 is the force exerted on a larger area upon A2, which is the larger area. अब P1 तो P2 से equal है, because the pressure exerted on one part of the liquid is transmitted equally and undiminished in all the parts of the liquid in all directions. तो P1 और P2 से equal हुआ according to Pascal's law. मतलब F1 upon A1 will be equal to F2 upon A2. ठीक है, और अगर तुम्हें F2 निकालना है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन बी, F2 की वैल्यू हो जाएगी F1 टाइम्स A2 अपॉन A1. तो एक बात समझो, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A2 से. जितना A2 ज्यादा उतना F2 की वैल्यू ज्यादा होगी. मतलब एक छोटे पिस्टन से जितना तुम वेट एक्सर्ट करोगे in a liquid confined liquid you can say, और अगर वो प्रेशर एक बड़े पिस्टन पे एक्सर्ट हो रहा है तो वो बड़ा पिस्टन उस प्रेशर को लेके ग्रेटर फोर्स में कन्वर्ट कर देगा. मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है? वी आर अप्लाइंग अ स्मॉलर फोर्स एंड वी आर गेटिंग अ लार्जर फोर्स. मतलब तुम एक छोटे फोर्स से ग्रेटर फोर्स क्रिएट कर रहे हो. मतलब if you apply a smaller force and if you are getting a larger force, that means you can lift a heavy object with a small force. Isn't it a useful machine? छोटे फोर्स से हेवी लोड को तुम लिफ्ट कर सकते हो. इट्स अ वेरी यूजफुल मशीन. समझ में है उसका फॉर्मूला? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2. यहां पे और एक वर्जन लिखा है उस फॉर्मूला का, मैंने तो मेरी तरीके से बताया था, यहां पे और एक वर्जन लिखा है, इसको नोट करो. F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. Since A2 is greater than A1, F2 has to be greater than F1. मतलब स्मॉल फोर्स, देखो ये इसका पूरा इसका एक जिस्ट बता दिया है इसमें. A small force F1 applied on smaller piston A can be used to produce large force F2 on bigger piston B. This is the principle of a hydraulic machine which acts as a force multiplier. तो hydraulic machine क्या है? It is a force multiplier. Examples of hydraulic machine. हाइड्रोलिक मशीन के एग्जाम्पल देखो. सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक प्रेस और ब्राह्मा प्रेस. ब्राह्मा प्रेस ये वो अपने हिंदू जो देवता है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा नहीं है, ठीक है, ब्राह्मा है, ब्राह्मा, नॉट ब्रह्मा. हाँ, तुम अगर इसको ब्रह्मा बुलाना चाहो तो बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश सब बुला दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्राह्मा प्रेस. ओके, हाइड्रोलिक प्रेस और ब्राह्मा प्रेस. सबसे पहला एग्जांपल. अच्छा, ये प्रेस यूज कहां पे होता है? अभी तुमने देखा होगा प्रेस वर्ड बहुत कॉमन है. प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है ना, वहां से रिलेट होता है. वहां भी कुछ ऐसा ही हाइड्रोलिक मशीन यूज होता है जिसको बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस क्या करता है? प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर्स और जितने भी मैगजीन्स, बुक्स, ये सबको प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का यूज होता है, जिसमें पेपर के ऊपर कुछ लेटर्स को प्रिंट किया जाता है. और वो जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो एक प्रेस करता है. प्रेस क्या है? प्रेस इज हाइड्रोलिक मशीन.
कैसे काम करता है प्रेस, इसको हम लोग को समझना है। तो ये जो मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन के एग्जांपल्स हैं, उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट में एक्चुअली। एक तो होगा उसका मेन डायग्राम। डायग्राम सबसे पहले तुम्हें लर्न कर लेना है कि कैसे डायग्राम इसका बनाना है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें। उसके बाद है उसका कंस्ट्रक्शन, जो डायग्राम से ही रिलेट कर सकते हो तुम डायरेक्टली, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम आर टुगेदर। उसके बाद है उसका प्रिंसिपल, मतलब कैसे काम करता है, और उसके बाद है उसका वर्किंग, ठीक है, और लास्ट है उसके यूजेस। तो ये सारी चीजें हर एक मशीन के बारे में तुम्हें समझनी है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड यूजेस। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे। इसमें 2 हॉलो सिलेंडर है, पी और क्यू। हॉलो सिलेंडर क्यू, हॉलो सिलेंडर पी, अंदर से खाली है। अभी तो इसमें लिक्विड है, लेकिन जनरली ये हॉलो होते हैं, फिर उसमें लिक्विड भरा जाता है बाद में। ठीक है, उसके बाद बोला है कि उसमें ये दोनों सिलेंडर में वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स, वाल्व्स V1 एंड V2। इसको कुछ लोग वॉल्व भी बोलते हैं, लेकिन ये वॉल्व नहीं है, वाल्व है। ठीक है, वाल्व, दिस इज वाल्व V1, cylinder P is fitted with valve V1, cylinder Q is fitted with valve V2। अब कुछ लोग को माइंड में क्वेश्चन आएगा, वाल्व का क्या एप्लीकेशन। Valve is such a device, is a mechanical device. It's such a device which allows the flow of water in one direction only. वो सिर्फ वाटर के फ्लो का डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेंडर पी में वाटर वाल्व V1 के थ्रू सिलेंडर के अंदर तो आ सकता है, लेकिन वाल्व V1 से वाटर सिलेंडर P से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वाल्व V1 अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर, नॉट आउट ऑफ द सिलेंडर। इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द सिलेंडर थ्रू इटसेल्फ। वाल्व V2 भी कुछ ऐसा है, लेकिन उसमें उल्टा है। उल्टा नहीं है, मैं वैसे ही है, मैं बता देता हूं। वाल्व V2 अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सिलेंडर थ्रू द कनेक्टिंग पाइप। कनेक्टिंग पाइप से वाल्व V2 में वाल्व V2 से सिलेंडर में पानी आ सकता है, बट बाहर नहीं जा सकता। इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर टू गो आउट थ्रू इट। ठीक है, तो वाल्व क्या करता है, इट कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये समझ गया, ओके। सिलेंडर पी के पास एक टैंक है या फिर रिजर्वॉयर है एट द बॉटम, कनेक्टेड थ्रू वाल्व V1। वाल्व V1 से एक टैंक कनेक्टेड है, ये वाटर सप्लाई टैंक या रिजर्वॉयर बोलते हैं इसको। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ Q इज लार्जर देन दैट ऑफ P। तुम्हें दिख रहा होगा P छोटा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन Q लार्जर है, एक्चुअली इससे भी ज्यादा लार्ज होता है। वाटर टाइट पिस्टन्स A एंड B आर फिटेड इन दीज सिलेंडर्स। ऊपर तुम देखोगे तो एक पिस्टन A है जो एक लेवर से कनेक्टेड है। ये लेवर एक हैंडल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक फलक्रम लगा हुआ है। सो बेसिकली ये लेवर से तुम क्या कर सकते हो, यू कैन पुश दिस लेवर डाउन and you can exert pressure on this fluid or liquid which is contained in cylinder P। लेवर और हैंडल का काम है जो सिलेंडर P पे लगा हुआ है, टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड कंटेन्ड इन सिलेंडर P। अब जब तुम प्रेशर एक्सर्ट करोगे, ये प्रेशर क्या होगा, इक्वली और अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द लिक्विड। और ये प्रेशर जब क्रिएट होगा तो वाटर जो है ये कनेक्टिंग पाइप आर के थ्रू होते हुए सिलेंडर क्यू में भरने लगेगा। राइट, कब तक भरेगा इसका कुछ फिक्स नहीं है, जितना तुम्हें भरना है भर सकते हो। ये सिलेंडर क्यू पूरा वाटर से भर सकते हो। अच्छा, सिलेंडर क्यू में जब वाटर भरने लगेगा तो क्या होगा, सी यू आर एक्सर्टिंग प्रेशर। मैं तो वर्किंग पे आ गया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ अभी फ्लो में। ठीक है, यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया, वाटर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वाल्व V1 तो बंद हो गया। वाल्व V1 डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो आउट ऑफ द सिलेंडर P, मैंने बताया था ना तुमको। अच्छा, यहाँ से ये पाइप से, कनेक्टिंग पाइप आर से लिक्विड अंदर जाएगा, और वाल्व V2 से लिक्विड आएगा सिलेंडर क्यू में। ये लिक्विड सिलेंडर क्यू के ऊपर नीचे से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था एक रिलेशनशिप, F2 बाय F1 इज इक्वल टू A2 बाय A1। मतलब A2 एरिया ऑफ द सेकेंड पिस्टन, पिस्टन B जितना लार्जर रहेगा उतना ज्यादा फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा वो। मतलब
जितना सफिशिएंट फोर्स है ये बड़े पिस्टन बी को मूव करने के लिए, उतना सफिशिएंट फोर्स हमको मिल जाएगा बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर फोर्स ऑन पिस्टन ए। ठीक है, यही आइडिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होती है, बेल ऑफ कॉटन बोला है यहाँ पे। कुछ भी चीज रख सकते हो तुम, बुक्स रख सकते हो तुम, पेपर्स रख सकते हो तुम, कोई भी चीज रख सकते हो जिसको तुम्हें कंप्रेस करना है। तो बेल ऑफ कॉटन है, कॉटन जनरली बहुत फ्लफी होता है, बट उसको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको जनरली कपड़े बनाने के लिए जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो जो कॉटन है उसको कंडेंस करना पड़ता है, उसको एक छोटे जगह पे उसको भरना पड़ता है, एंड देन इट ऑक्यूपाइज अ वेरी लेस वॉल्यूम, एंड देन इट इज पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। तो उसको कंप्रेस करने के लिए ऐसे प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है। मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्शन में ही बहुत सारी चीजें बता दी है, तो आगे मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगा, बट अभी तक जो हमको समझ में आया है दैट देर आर टू हॉलो सिलेंडर्स पी एंड क्यू। सिलेंडर पी छोटा है, सिलेंडर क्यू बड़ा है, दोनों के ऊपर वाटर टाइट पिस्टन होते हैं, वाल्व्स होते हैं जो वाटर की एंट्री को, डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में। सिलेंडर पी के नीचे एक वाटर सप्लाई या रिजर्वॉयर है। अच्छा, ये रिजर्वॉयर से पानी ऊपर कैसे आता है, सबसे पहले भरता कैसे है, वहां से स्टोरी शुरू होनी चाहिए यार, वो तो बताया नहीं मैंने। पहले ये खाली रहता है, तो ये जो पिस्टन है तुम्हारा, सॉरी पिस्टन ए है जो, ये पूरा यहाँ पे होता है। पिस्टन ए की जो इनिशियल पोजीशन होती है वो सपोज है यहाँ पे, और ये हैंडल थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, अब हैंडल को ऊपर और खींचोगे तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आएगा। पिस्टन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये वाल्व खुल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्ट्रॉ की तरह काम करेगा। ठीक है, अंदर खाली जो जगह है वहां पे प्रेशर कम होगा, वो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये पानी को पुश करेगा, और ये पानी इसके अंदर से होते हुए कहाँ पे जाएगा, ये फिल हो जाएगा तुम्हारे सिलेंडर पी में। So cylinder P will be filled with the liquid when you pull the when you push the handle down, or no, not when you don't push the handle down, when you pull the handle up. So you are pulling the lever which is connected with the piston. So piston comes up and sucks the water inside the cylinder P from the reservoir. ठीक है, अब पूरा भर गया सिलेंडर पी, तो वहां पे अब जगह नहीं है, तो अब क्या होगा, now the cylinder P is completely filled, so water will not be able to flow out through the valve V1। अब जितना भी वाटर है वो कनेक्टिंग पाइप में भी भर जाएगा। एंड फिर जो मैंने बोला कि जब हम लोग हैंडल को नीचे प्रेस करते हैं तो लेवर नीचे जाता है, और पिस्टन ए नीचे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो इक्वली और अनडिमिनिश ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द कनेक्टिंग पाइप आर ऑल द वे टू सिलेंडर क्यू, जहां पे वाटर भर जाता है। और जो बड़ा वाला पिस्टन है, उसको जो प्रेस प्लंजर या रैम बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उठता है, और उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट है, बेल ऑफ कॉटन है या कुछ और है, पेपर है, वो पूरा प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, मैंने हाफ वर्किंग भी बता दिया, फिर भी कुछ चीजें बाकी है वो मैं बता देता हूँ। The two cylinders are connected by a pipe. R, the piston A of smaller cylinder is called pump plunger. इसको pump plunger बोलते हैं, इसको press plunger बोलते हैं। To press down or raise up the pump plunger a lever arrangement provided with handle H is used. Cylinder Q at its bottom is provided with a release valve which joins it to the reservoir. अच्छा, यहाँ पे एक रिलीज वाल्व होता है। सपोज ये पूरा सिलेंडर भर गया पानी से, ठीक है, और ये बेल ऑफ कॉटन पूरा कंप्रेस हो गया, पिस्टन बी पूरा ऊपर की तरफ उठ गया। अब तुम्हें ये पानी को रिलीज करना है, अभी बेल ऑफ कॉटन तो पूरा कंप्रेस हो गया, अब क्या काम पानी का अंदर, अब तो पिस्टन बी या प्रेस प्लंजर को नीचे लाना पड़ेगा। तो एक रिलीज वाल्व होता है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रिलीज वाल्व को ओपन कर देते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ टैप, उसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही उसको ओपन करते हैं, यहाँ से पूरा पानी निकल के वापस तुम्हारे रिजर्वॉयर में चला जाता है, और पिस्टन बी नीचे आ जाता है। हाँ, वाल्व V2 क्या करता है, वो पानी को वापस कनेक्टिंग पाइप R में नहीं जाने देता, वो रोक देता है पानी को, बिकॉज इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर ओनली इनटू द सिलेंडर, नॉट आउट ऑफ द सिलेंडर। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक है, सो मैंने इसके कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग के बहुत सारे पॉइंट्स बताए, लेकिन प्रिंसिपल क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जब एक छोटा फोर्स F1 अप्लाई करते हैं हम लोग पिस्टन ए पे, it exerts the pressure on the liquid contained in the cylinder, and according to Pascal's law this pressure is transmitted equally and undiminished in all the direction through uh,
throughout the liquid in tube R to the piston B of the other cylinder Q, due to which the piston B tends to move upward. Since the area of cross section of piston P cylinder, so cylinder Q का जो पिस्टन है उसका एरिया बड़ा है, ठीक है, तो पिस्टन बी टेंड्स टू मूव अपवर्ड्स सिंस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर पी is less than that of cylinder Q. Therefore, by applying small force on piston A, we can lift a large weight kept on piston B. यही तो प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक मशीन का. इट्स अ फोर्स मल्टीप्लायर. पहले भी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे लिखा है hydraulic machine which acts as a force multiplier. With a small force, it can create a greater force. Right? The cylinder Q at its bottom is provided with a release valve which joins it to the. अच्छा एक मिनट, मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये तो हो गया. अच्छा, when no weight is placed on piston B, it rises up against a fixed roof with force F. F2 greater than F1. If bale of cotton is kept, it gets compressed. वर्किंग मैंने आधा बता दिया, आधा नहीं मैंने पूरा ही बता दिया कि रिलीज वाल्व से इसको खोल के फिर बाकी का पानी वापस रिजर्वायर में चला जाता है. And this piston B again comes down, the cylinder Q gets empty. Cylinder P also already it got empty because we applied pressure and we pushed all the liquid. We transmitted the pressure equally and undiminished with the liquid into the cylinder Q, by which the piston B moved upwards. So cylinder P तो खाली था. अब अगर वापस उसको चलाना है मशीन को, तो यहाँ पे जो बेल ऑफ कॉटन कंप्रेस है उसको निकाल के दूसरा नया बेल डाल देते हैं, और सिलेंडर पी का जो पिस्टन ए है उसको वापस वो लेवर को ऊपर की तरफ खींचते हैं. सो बाय द sucking action due to atmospheric pressure, the water gets filled in this cylinder P. ठीक है, so that's the whole thing, whole story I have told you just now. ठीक है, अगर तुम्हें कोई वीडियोस भी देखने हैं इसके वर्किंग के, तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे वीडियो निकाल के दे दूंगा. मैं अपनी चैनल पे अभी अपने वीडियोस में मैं दूसरे वीडियोस नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज एक तो अपना जो टाइम है वो भी ज्यादा चला जाता है, दूसरी बात है कि इट इज नॉट एथिकल, इट इज नॉट राइट टू यूज अदर पीपल्स वीडियो. दैट आई लर्नड. मुझे कोई ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं मिली है, बट I've learned that that's not right. If I want to share the video, I will share it to you separately. I'm not showing anything here because I'm not created that, so I cannot put it in my videos, right, without any um, you can say permission. ठीक है, तो पूरा समझ में आया तुम्हें हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है. एक वीडियो दूंगा उससे और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें. ओके, यूजेस देख लो हाइड्रोलिक प्रेस के. हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज्ड मेनली फॉर फॉलोइंग पर्पसेस: for pressing cotton bales and goods like quilts, books, etc. For extracting juice from sugarcane, sugar beet, etc. Cold press juice बहुत फेमस है आजकल. कोल्ड प्रेस ऑयल, ये इसी हाइड्रोलिक मशीन या हाइड्रोलिक प्रेस से निकाला जाता है. फॉर स्क्वीजिंग ऑयल आउट ऑफ लिंसीड एंड कॉटन सीड्स, फॉर एनग्रेविंग मोनोग्राम्स ऑन गुड्स, ये सारे इसके यूजेस हैं. ठीक है, तो इसका एक तो डायग्राम लर्न कर लेना. इसका मेन प्रिंसिपल हाइड्रोलिक मशीन का ये है. अगर प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन पूछे तो तुम्हें ये सारे इक्वेशंस के साथ पूरा डिराइव करना पड़ेगा. ठीक है, और वो पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल्स जो जो मैंने तुम्हें बताया है. हाँ, अगर तुम्हें हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में पूछते हैं तो यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन इन ब्रीफ हाँ छोटे से कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग उसका एक्सप्लेन कर दो. पॉइंट वाइज लिखो और यूजेस उसके लर्न कर लो. तो कोई भी क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक प्रेस पे, यू गेट फुल मार्क्स. ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ एक्सरसाइज में यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस. नेक्स्ट, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट. A hydraulic jack is used for lifting heavy vehicles such as cars, trucks, etc. ये तुम्हें जनरली गैराजेस में और वर्कशॉप जो होती है कार वर्कशॉप उसमें देखने मिल जाएगा. सो इफ योर पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट हैज अ कार, यू कैन गो टू सर्विस सेंटर जहाँ पे कार को जनरली लेके जाना पड़ता है फॉर मेंटेनेंस एंड सर्विसेज. तो वहाँ पे जाके तुम नोटिस कर सकते हो कि कैसे हाइड्रोलिक जैक के हेल्प से वी कैन लिफ्ट द कार्स, आर लिफ्टेड, हेवी कार्स आर लिफ्टेड. ठीक है, इन सर्विस स्टेशंस फॉर देयर रिपेयरिंग. इट वर्क्स ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन.
कैसे कंस्ट्रक्शन देखो इसका बहुत सिंपल है। सिंपल फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक जैक यहाँ पे दिखा है। इसमें दो सिलेंडर होते हैं, सिलिंड्रिकल वेसल्स बेसिकली, पी और क्यू। पी छोटा होता है, क्यू बड़ा होता है। क्यू इतना बड़ा होता है कि उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे कार भी रख दो तो कार भी ऊपर चली जाती है। और पिस्टन पी कंपेरेटिवली छोटा होता है, उसके ऊपर एक हैंडल होता है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं तो ये प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है थ्रू कनेक्टिंग पाइप आर इनटू द अदर सिलेंडर एंड द अदर कार गेट्स लिफ्टेड। मतलब वही हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल है, इसमें थोड़े चेंजेस है। यहाँ पे हैंडल और कार की साइज एक लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हैंडल इज लाइक वी कैन होल्ड इन योर हैंड एंड कार इज ह्यूज। ओके, सो डोंट हैव दैट कंफ्यूजन इन योर माइंड कि ये कैसे हो सकता है। आई विल शो यू, आई विल शेयर सम वीडियोज विथ यू। ओके, एनीवेज, सो इसका कंस्ट्रक्शन देख लो। सिलेंडर पी और क्यू कनेक्टेड है बाय अ ट्यूब आर हैविंग वाल्व वी। द पिस्टन ए इन द नैरो सिलेंडर पी इज अटैच्ड टू अ लेवर। ये लीवर नहीं है, लेवर है। लीवर तुम्हारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो वो दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, ये सारी बात अलग है, वो लीवर है। ये लेवर है, लेवर। तो अगर तुम्हारी टीचर उसको लीवर बोलती है तो करेक्ट मत करना, समझ जाना कि वो लेवर है, लीवर नहीं है, ठीक है। So cylinder P is attached to a lever and the piston B of the wider cylinder Q has a platform for lifting the vehicle. The vessels are filled with a liquid, say water, कभी कभी ऑयल भी होता है। वर्किंग देखो बहुत सिंपल है। व्हेन अ हैंडल एच ऑफ लेवर इज प्रेस्ड डाउन बाय अप्लाइंग एन एफर्ट, द वाल्व वी ओपन्स। अब ये वाल्व वी क्या है पता है? इट ओपन्स इन बोथ डायरेक्शन। दिस इज अ टू डायरेक्शनल वाल्व। अगर प्रेशर तुम्हें सिलेंडर पी से अप्लाई किया तो वाल्व वी ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है एंड द वाटर फ्लोज इनटू द सिलेंडर क्यू, ठीक है। लेकिन अगर हैंडल को ऊपर उठाया तो वाल्व वी ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन होता है और सारा जो लिक्विड है वो सिलेंडर क्यू से वापस सिलेंडर पी में आ जाता है। तो इट्स अ डबल टू वे वाल्व, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट द पिस्टन बी rises up and it raises the car placed on the platform. When car reaches the desired height, uh, handle H of the lever is no longer pressed, the valve V gets closed. Since the pressure on either side of the valve becomes the same, so that the liquid may not run back from the cylinder Q to the cylinder P. मतलब ये जो वाल्व है ना, ये अगर ये हैंडल फिक्स्ड है अपनी जगह पे, लॉक्ड है, तो ये वाल्व नहीं खुलेगा। ये वाल्व को खोलने के लिए और बंद करने के लिए हैंडल H ही यूज होता है। Means you can open this valve V and water can come from cylinder Q to cylinder P, or you can open this valve V to let the water run from cylinder P to cylinder Q, but that operation is controlled only by the handle H connected with this lever. It is not controlled by this cylinder Q. Okay, मतलब ये valve और ये handle का कुछ connection है, ठीक है। okay, तो इससे ज्यादा कुछ भी तुम्हें डिटेल्स नहीं दी है हाइड्रोलिक जैक के बारे में। लेट्स गो टू हाइड्रोलिक ब्रेक्स। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, बट या दिस पार्ट इज ओवर। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड इन कार्स एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल। ये तो अभी बाइक्स और बाइक्स में भी यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ऐसा नहीं है कि कार्स में यूज होता है। बहुत सारे व्हीकल्स में यूज होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन देख लो। अरेंजमेंट, hydraulic brake arrangement of a vehicle. It consists of a pipe line R containing a liquid, generally oil होता है। तो ये पाइपलाइन दिख रहे हो R, ये पाइपलाइन जो है ना, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल व्हील दिखाया है। सिंगल व्हील, इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर या फिर ब्रेक ड्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल ब्रेक ड्रम दिखाया है। ऐसे 4 ब्रेक ड्रम्स होते हैं, बिकॉज ब्रेक सारे यू कैन से ऑल द व्हील्स हैव द ब्रेक्स ना, तो सारे व्हील्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो पाइपलाइन आर है ये चारों व्हील्स में जाती है और चारों व्हील्स में सेम अरेंजमेंट होता है, ठीक है। पहले अरेंजमेंट समझ लो। तो वन एंड ऑफ विच इज कनेक्टेड टू द मास्टर सिलेंडर पी। तो तुम्हारा जो ब्रेक होता है ना, फुट पेडल के साथ जो कनेक्टेड होता है, वो मास्टर सिलेंडर पी से कनेक्टेड होता है। मास्टर सिलेंडर पी इज विच applies pressure to all the small wheel cylinders. So master cylinder P pressure create करता है और वो pressure transmit होता है equally और undiminished in all the direction to all the wheel cylinders, ठीक है, using Pascal's law. तो मास्टर सिलेंडर P में एक पिस्टन A है जो फुट पेडल से अटैच्ड है। The other end of pipe R is connected to the brake arrangement of different wheels of the vehicle. पाइप R के जो दूसरे सिलेंडर है वो
पाइप आर से जो दूसरे सिलेंडर्स है वो ब्रेक अरेंजमेंट के साथ कनेक्टेड। Figure 4.9 shows only one wheel connected with pipeline. For each wheel, there is a wheel cylinder Q having two pistons B1 and B2 attached to the brake shoe. The area of cross section of the wheel Q is greater than the area of cross section of the master cylinder P. मास्टर सिलेंडर P का एरिया छोटा होता है, लेकिन व्हील सिलेंडर जो ब्रेक शू के साथ अटैच होता है उसका एरिया बड़ा होता है। मतलब अ स्मॉल फोर्स कैन क्रिएट अ ग्रेटर फोर्स। सेम वही पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल। द ब्रेक शू प्रेस अगेंस्ट द रिम ऑफ व्हील। ये जो बाहर वाला तुम्हें सर्कल दिख रहा है ना, दैट इज द रिम ऑफ द व्हील। यहाँ पे एक हिंज है, तो जैसे ही ये ब्रेक शू के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है पिस्टन B1 एंड B2 ऑफ द व्हील सिलेंडर, दिस ब्रेक शू प्रेसेस अगेंस्ट द रिम ऑफ द व्हील एंड द व्हील स्टॉप्स टर्निंग। मतलब हम बोलते हैं कि ब्रेक्स अप्लाई हो गए। और जैसे ही तुम फुट पेडल को रिलीज करोगे, मास्टर सिलेंडर पी से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और तुम्हारा जो व्हील सिलेंडर है वहां से भी प्रेशर कम हो जाएगा। एंड ड्यू टू द स्प्रिंग एक्शन, तुम देखोगे ब्रेक शू के बीच में स्प्रिंग एक्शन है, उस स्प्रिंग एक्शन से ब्रेक्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अंदर की तरफ आ जाएगी और रिम ऑफ व्हील रिलीज हो जाएगा, सो इट कैन रोटेट अगेन। दैट्स हाउ ब्रेक्स वर्क्स। वर्किंग बता दिया मैंने, ठीक है। तो वर्किंग बता दिया मैंने, पूरा मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ अभी, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, बट बहुत सिंपल है। ब्रेक अप्लाई करो, प्रेशर मास्टर सिलेंडर पी में एक्सर्ट होगा पिस्टन ए के थ्रू, और ये प्रेशर पाइपलाइन आर के थ्रू इक्वली और अनडिमिनिश्ड सारे व्हील सिलेंडर में एक्सर्ट होगा। और क्योंकि व्हील सिलेंडर में जो पिस्टन B1 और B2 है उसका एरिया लार्जर है, सो दैट इट विल बी अ लार्ज प्रेशर which will be exerted on the brake shoe, which will press against the rim of wheel, which will stop the turning effect of the wheel. And when you release the foot pedal, the pressure is released and the brake shoe releases the rim of wheel, and rim of wheel can again turn normally, ठीक है। सो ये सारे हाइड्रोलिक मशीन्स के प्रिंसिपल है जो मैंने तुम्हें बताया। एक चीज नोट करना, इन ऑल हाइड्रोलिक मशीन्स effort is less than load, while the distance moved by effort is more than the distance moved by load, such that the product of effort and distance moved by load is equal to the product of load and the distance moved by load। ये जो है ना, ये मशीन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ये तुम क्लास 10th में मशीन्स नाम के चैप्टर में पढ़ोगे। तो वर्क डन बाय एफर्ट हमेशा वर्क डन बाय लोड से इक्वल होता है, और मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, विच इज लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो, एंड वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन, एंड हेंस हाइड्रोलिक मशीन एक्ट्स लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर। इफ यू से के ये जो लास्ट नोट में जो कुछ पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आया, मैं बोलता हूँ अभी कुछ रिलैक्स करो, कुछ भी इसको समझने की कोशिश मत करो, बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग we have to understand what a machine is, what a load is, what effort is, what is mechanical advantage, what is velocity ratio, which you are going to study in class 10. So don't pay any attention to this particular note wala paragraph as of now. Okay, so first part of this chapter 4 is complete, ठीक है। I'm going to send this part and then you watch this part, take notes if required, and then you can start with the exercise. I'll formally tell you the dates of submission of exercise 4A. But अच्छा, और एक बात है कि the numericals will be done separately. First I will release the theoretical videos and then the numerical videos separately. मतलब हर एक पार्ट के जो न्यूमेरिकल के वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग पहले थियोरी कंप्लीट कर लेते हैं सारे चैप्टर्स की, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।